کہ بے گناہ کو چھیڑو مت اور گناہگار کو چھوڑو مت۔ سیکورٹی فورسز کی اور سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر لوگ سڑک پر آ جائیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم کرنے والے نہیں۔ ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے پوجنیہ دادا جی کی اسمرتی میں استھاپت دیش کے پرتشٹھت کلبوں میں سے امر سنگھ کلب میں ان کا سمان کرنا ہم سبھی کے لیے اتنت گورو اور پرسنتا کا وشے ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کرن سنگھ جی کو کسی ایک پریچے میں سمیٹنا بڑا کٹھن کام ہے، میرے پورو وستار سے بتایا گیا ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک راجنیتی سے زیادہ ویکتیگت روپ سے میں انہیں ایک دارشنک مانتا ہوں۔ یہ دھارنا میری کیسے بنی، اس کے پیچھے ایک کہانی آج کل آپ سب جانتے ہیں، امرناتھ جی کی یاترا چل رہی اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کی تیاری کے سلسلے میں، اس کا اتہاس جاننے کے سلسلے میں کئی پستکیں پڑھ رہا۔ انہی میں سے ایک پستک مجھے پڑھنے کا اوسر ملا جس میں ایک لیکھ تھا ڈاکٹر کرن سنگھ جی کا، اور انہوں نے 22 برس کی اوستھا میں امرناتھ جی کی یاترا کی اور اس کا ورتانت لکھا ہے۔ انہوں اس کم آیو میں، ینگ ایج میں، جو اچھا انہوں نے ظاہر کی کہ میں سنیاسی بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک کہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ اس سے پوچھ رہا غلط نہیں کوٹ کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی یاترا کے سمبندھ میں لکھا تھا، جسے میں کوٹ کرنا چاہوں گا: ویکتی کو اس یاترا میں ایک ایسی شکتی کے استعتو کا احساس ہوتا ہے جو اس کی چھدر آتما سے کہیں ادھک وشال، شکتیشالی اور پوتر ہے۔ میرے انترتم میں یہ آکانچھا ہے کہ کسی دن میں ایسے ہی پریویش میں اپنا ایک چھوٹا سا آشرم بناؤں گا۔ مجھے آشچर्य ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں آدھیاتم اور استعتو کے بارے میں اتنا گہرا وچار کسی میں ہو سکتا ہے، اور سچ مانیے تو آدھیاتم نے اسپریچولیٹی کے وچار ایسے نہیں آتے، بلکہ یہ پورو جنموں کے سنسکار ہوتے ہیں اور نشچت روپ سے آتما کو چھوتے ہیں۔ کوئی بھی ویکتی آدھیاتمک تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے جیون کے سبھی آیام، سبھی ڈائمنشنز ایک ساتھ سنجکت ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ان شبدوں میں ڈاکٹر صاحب کا پرتبمب ہے، اور اس لیے انہیں میں فلاسفر، دارشنک کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ اپنے درشن کو، اس وچار پرمپرا کو دیش واسیوں کے بیچ بانٹنے کا بھی دائتو ڈاکٹر صاحب نے بخوبی نبھایا۔ پچھلے سال مارچ میں سوئم شریمد بھاگوت گیتا کے ان کے بھاشیہ کے لوکارپن کے اوسر پر موجود تھا، جس میں کئی ودوانوں نے یوگدان دیا۔ بھگوت گیتا پر سینکڑوں لوگوں نے بھاشیہ لکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ستاروں سے بھرے آکاش میں دھرو تارا اکیلا ہی چمکتا ہے، بالکل الگ اور انوکھے روپ۔ آدرنیہ پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی نے اس وقت اس پستک کے وموچن کے کارکرم میں کہا تھا کہ ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے پریاسوں نے جموں کشمیر کی پہچان کو پنرجیوت کیا ہے، اور جس ادیش سے ڈاکٹر کرن سنگھ جی نے راجنیتی، ساہتیہ، سنسکرتی اور سماج سیوا میں جیون بتایا ہے، راشٹریہ چنتن کے مولیوں کو لوگوں کے ساتھ ساجھا کیا ہے، اس سندرب میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک چھیتر میں ہمیں ان کے آدھیاتمک، ساماجک اور بھاوناتمک ایکتا کی جھلک ملتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جموں میں کارکرم تھا، مہاراجہ گلاب سنگھ جی کے 200ویں راج تلک میں شامل ہونے کا اوسر مجھے بھی ملا تھا۔ اس دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ ویکتی تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیماؤں میں نہیں باندھا جا سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کرن سنگھ جی اسی شریणी میں آتے ہیں جنہیں سیماؤں میں باندھنا اچت نہیں ہوگا۔
बर्फ कहीं भी हो वो हिमालय की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरह डॉक्टर करण सिंह जी कहीं भी हों वो जम्मू कश्मीर की विशालता का, विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगे और करते हैं। अगर मैं शब्दों को सीमित चयन करूं तो डॉक्टर करण सिंह जी जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों में फल फूल रहे साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन के आधार स्तंभ हैं तथा संपूर्ण भारत के लिए जम्मू कश्मीर की संपन्न चेतना का एक विचार भी। डॉक्टर करण सिंह जी के पिता महाराजा हरि सिंह जी द्वारा स्थापित ये क्लब जैसा बताया गया 1933 से लेकर वर्तमान तक घट रही घटनाओं का साक्षी रहा है। इस सूर्य नगरी जिसे श्रीनगर हम कहते हैं, हम शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखते हैं, उसका एक जीवंत स्थल भी है। ऐतिहासिक जगहें कभी भी मात्र चारदीवारियों, बगीचों और मैदान से नहीं बनती। क्लब सिर्फ सुविधाओं की जगह नहीं होता, यह इतिहास और विचारों का ऊर्जा क्षेत्र होता है। इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, वर्तमान में जो घटित हो रहा है तथा भविष्य में जो होने वाला है, यह उससे संबंधित बुद्धिजीवियों, समाज के मान्य तथा प्रभावी लोगों के विचार मंथन का भी साक्षी होता है। मित्रों, इतिहास की तरफ कभी कभी देखना अच्छा होता है ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकें। यह क्लब श्रीनगर के वाइब्रेंट कल्चर की जीती जागती मिसाल है। एक ब्रिटिशर स्कॉट कॉर्नर ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि हरि सिंह क्लब, अमर सिंह क्लब, गोल्फ क्लब जैसी जगहों ने चर्चा और विचारों की जीवन संस्कृति विकसित करने में मदद की थी तथा स्कूलों को भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रेरित किया था। अभी जो बात डॉक्टर साहब कह रहे, ये क्लब उन चर्चाओं का भी साक्षी है जब जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने कहा कि आजादी के पहले से अब तक देख रहे हैं, और विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया कुछ अस्थायी कानूनों का, तो ये क्लब उसका भी साक्षी है। आवाम के कुछ जीवंत वर्ग वंचित रह गए। देश की संसद, जिसको डॉक्टर साहब ने काफी समय जिसमें गुजारा है, वहां जितनी स्कीम बनती थी, जितने कानून बनते थे, मुझे भी वहां रहने का अवसर मिला, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया जाता है। और एक बड़ी आबादी के हृदय में मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये तकलीफ जरूर रही होगी। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। एक लंबे अरसे के बाद देश में जो कानून बन रहे हैं वो पूरे देश में लागू हो रहे हैं, और मुझे लगता है निजी तौर पर, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं, ये जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा। जो सपना हमारे आपके पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने में जरूर मदद करेगा। बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेगा और 21वीं सदी के अवसरों का लाभ समतामूलक विचारधारा के साथ उठा सकेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मोपम में न सर्वत्र समम सुखम वा यदि वा दुख स्वयोगी परमो मतः। जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर सबको समभाव से देखता है, वही परम श्रेष्ठ योगी है। राष्ट्र और समाज के निर्माण का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समभाव की भावना नहीं आती। मुझे लगता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री इसी भावना, इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश में काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत विकास और सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, ऐसा प्रयास हो रहा है। समावेशी विकास के विजन के मुताबिक भौतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां वाइब्रेंट साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश
को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही, वहीं दूसरी तरफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने और आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने तथा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश भी हुई है। कुछ बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं। मुझे याद है 2 साल पहले स्पोर्ट्स में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आंकड़ा आया था 1 लाख सवा लाख लोग। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष कोविड के बावजूद 17 लाख बच्चों और बच्चियों ने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। 8 अगस्त 2020 को मैं आया था। सामाजिक जीवन में काम करने के नाते देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ लोग फोन करते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे फोन किया, साहब एक आदमी मेरा परिचित है, 2012 में काम किया था जम्मू कश्मीर में, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस तरह के अनेक फोन मेरे पास आते थे। पता किया, थोड़ा गहराई में गया तो पता चला साहब बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के ही काम हो जाता है। फाइनेंशियल सैंक्शन के बिना टेंडर के भी काम होता है। किसी को बनवाना था, किसी को बनाना था, इस आधार पर अनेक इस तरह के काम होते रहे हैं। उस व्यवस्था को बदला गया। जब व्यवस्था बदली गई, कई लोग संदेह व्यक्त कर रहे थे और शिकायत भी कर रहे थे कि अब तो लग रहा है कि काम होगा ही नहीं। लेकिन मैं आज जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, 2018-19 में यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 9,229 9229। सितंबर से वो व्यवस्था लागू की गई। ई टेंडरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल सैंक्शन, बीम्स और 20-21 में 4,000 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। 63,000 करोड़ कुल हमारा यूटी कैपेक्स में खर्च हुआ और प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,000 से ज्यादा। और मुझे बताते हुए खुशी है इस फाइनेंशियल ईयर में 51,000 प्रोजेक्ट इस यूटी में पूरे हुए हैं। मुझे याद है मैंने बताया कि 8 अगस्त को आया था। 28 अक्टूबर का दिन मुझे भूलेगा नहीं, 28 अक्टूबर 2020। मेरी आंखों के सामने से 200 से ज्यादा ट्रक श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रहे थे। मैंने किसी से पूछा ये है क्या? कहा ये फाइल है सेक्रेटेरिएट की। महीने भर काम नहीं होता था, 15 दिन की छुट्टी तो सरकारी तौर पर होती थी और किसी व्यक्ति की अगर जरूरी फाइल थी तो वो तो निश्चित ही नहीं मिलती थी, या तो गायब हो जाती थी या कुछ और हो जाता था। हमने फैसला किया कि अब ऑफिस टेक्नोलॉजी के जमाने में फाइल का जमाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और मई में जब जम्मू से श्रीनगर लोग आए तो एक भी ट्रक फाइल लेकर के नहीं आई। आज हमारी 150 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हो गई। और ये भी बताते हुए मुझे खुशी है ई गवर्नेंस में अभी भारत सरकार ने जो पुरस्कार दिया यूनाइटेड टेरिटरीज यूटीज में जम्मू कश्मीर नंबर 1 साबित हुआ है महज 1.5 वर्षों में। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सब यहां बैठे हैं और आपको जानना ये आवश्यक है, क्योंकि अवसर मिले तो ये बात कहनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर की बात किसी ने की, मैं कह सकता हूं कि हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स नेशनल एवरेज से सब में बेहतर हम काम कर रहे हैं। एक भी पैरामीटर आप उठा के देख लीजिए। 6 किलोमीटर सड़क बनती थी 2020 के पहले, प्रतिदिन आज 21 किलोमीटर सड़क बन रही, प्रतिदिन बन रही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 10-12 जब से शुरू हुई, वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुई, उठा के आंकड़े देख लीजिए। नीचे से जब स्टेट्स की सूची होती तो 5 के अंदर ही जम्मू कश्मीर रहता था। एक बड़ी बदल आई है, जम्मू कश्मीर ऊपर से तीसरे स्थान पर है, 2 ही राज्य हमसे ऊपर हैं। ये बदल पिछले कुछ दिनों में हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जम्मू कश्मीर परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल हो गया है।
और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 वर्षों में टॉप परफॉर्मर जम्मू कश्मीर हो, ये लक्ष्य हम हासिल करें। मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता हूं। 1 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट का जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के नाम। सोनमर्ग बर्फ में भी पिछले साल खुला हुआ था, ये पहली बार हुआ है। ऐसे अनेक इलाके थे जहां बिजली पहुंचाना दुष्कर कार्य था। अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए वहां भी बिजली पहुंचाने का काम काफी हद तक किया गया और अगले साल तक कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंच जाएगी। असीम और अपार संभावनाओं के बावजूद अभी तक हम 3450 मेगावाट बिजली बनाते हैं। मुझे याद है इसी साल जब रमजान का पाक महीना चल रहा, बगलियार में प्रोजेक्ट में पानी कम था, 2 यूनिट हमारी चल रही थी, तीसरी यूनिट सुबह और शाम चलाते थे ताकि शहरी और इफ्तार के समय लोगों को बिजली दी जा सके। पूरे देश में बिजली की किल्लत हो गई थी। ओपन मार्केट में 15 रुपया यूनिट बिजली हम खरीद रहे थे, 7 दिन तक खरीदा और उसके बाद 12 रुपया यूनिट खरीदा। एक स्थिति ऐसी आई कि 50 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिल नहीं रही थी ओपन मार्केट। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध किया, तब जाकर 207 मेगावाट बिजली आई। फिर वो ईद के 3-4 दिन पहले स्थिति ठीक हुई और 3 दिनों में अखबारों में रंग गया कि बिजली गायब, इस महीने में भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अभी एनटीपीसी ने 300 मेगावाट बिजली देना हमें 13 दिन पहले बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब पैसा देंगे तभी बिजली मिलेगी। वर्तमान पैसा हमने देना शुरू कर दिया, हर महीने का भुगतान कर दे रहे हैं, लेकिन 11,500 करोड़ का पहले का बकाया। अब एनटीपीसी करे उसका भी हिसाब बना के दीजिए, कितने दिन में देंगे तब बिजली देंगे। ये सब विरासत में मिली हुई चीजें, इसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। ढांचागत विकास के अलावा एक मजबूत, उन्नत, समृद्ध जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री का होना बड़ा आवश्यक है। और बड़ी जिम्मेदारी से बात मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,772 करोड़ का था। 1 वर्ष में अभी 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 38,080 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जम्मू में उन्होंने किया था। 52,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास है। अभी 2 महीने हमने रोका हुआ है, 2 महीने बाद बाकी की स्वीकृति करेंगे। और इस बड़ी सभा में बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आने वाले 16 महीनों में मिनिमम 70,000 करोड़ का कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। रोजगार भी मिलेगा, मैं समझता हूं कि रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। ये कोशिश की जा रही है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि डल साफ हो गई। कोई बड़ा इंटरवेंशन नहीं किया गया, क्योंकि इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में अब हर आदमी हर समस्या का प्रेजेंटेशन लेके आ जाता है कि मेरे पास समाधान। मैं भी जब आया था, मेरे पास लोग आते थे, एग्जैक्ट डल मैं क्लीन कर दूंगा। मैं कई बार कहता था कि भाई कितना पैसा लगेगा बताओ, और ये गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख करके दो कि इतने दिन में क्लीन कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा वो पलट कर नहीं आता था। तो एक छोटा सा काम हम लोगों ने किया है, जो दल के किनारे लोग रहते हैं, पहले ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ये सफाई का काम करता था, अब वहीं के लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी में जो 300 रुपया हमारे कर्म मजदूर पाते थे, अब उनको 513 रुपया रोज मिल रहा है। वो मन से काम कर रहे हैं और अधिकांश दल का 80% भाग केवल मजदूरों ने, वहां के स्थानीय निवासियों ने साफ कर दिया। कोई बड़ा करिश्मा ये नहीं हुआ। अब तकनीकी रूप से उसमें क्या किया जा सकता है वो भी विचार हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अच्छी दिशा में हम जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है। मैं समझता हूं कि भारत और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची। देश के प्रधानमंत्री जी ने
और देश के गृह मंत्री ने तो देश की संसद पर कई बार इस बात को कहा है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि चुनाव होंगे। एक प्रक्रिया पूरी हुई है डिलिमिटेशन की, इलेक्टोरल रोल का काम अब शुरू हो गया है, आप सबने अखबारों में पढ़ा है। और इस प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये बात भी बार बार दोहराई गई है, डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर उचित समय पर स्टेट का दर्जा। इसलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है किसी को इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। और आप तो स्वयं भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, देश की संसद का प्रतिनिधित्व किए हैं। संसद में दिए गए एश्योरेंस का मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और आप सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि संसद में कही हुई बात सरकार की वो उतनी ही सत्य है जितना सूरज पूरब से निकलता है, वो निश्चित रूप से जमीन पर उतरता है। मैं मानता हूं कि संभावनाएं यहां असीम है। कुछ लोग हैं जो आघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक बात का जिक्र मैं और करना चाहता, एक नीति हम सबकी बड़ी स्पष्ट है, मेरी कम से कम, और वो मैं बार बार दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह व्यक्ति के साथ कोई नाइंसाफी हो, कोई जबरदस्ती हो, इसके हम खिलाफ हैं, लेकिन गुनाहगार को बख्शा जाए इसके भी हम उतने ही खिलाफ। और आज मैं कह सकता हूं कुछ लोगों को कठिनाई पैदा हो रही, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सी नई नीति शुरू हो गई है कि बेगुनाह को छेड़ो मत। और इसलिए डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में बेगुनाह नागरिकों का खून बहाया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि वो किस लिए किया जा रहा है। तो उनकी हताशा का परिणाम वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से कोई गलती हो जाए और फिर लोग सड़क पर आ जाए। मैं कहना चाहता हूं कि ये काम हम करने वाले नहीं। किसी बेगुनाह के साथ कोई सड़क की कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस करे, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, और न दी गई है न आगे दी जाएगी। कुछ लोग उस पार बैठ करके, मुझे लगता है कि उनको नहीं पसंद है कि देश भर में एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हो, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। डॉक्टर धर के स्कूल के बच्चे पूरे देश और दुनिया में कमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन गति से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग इस चीज को नहीं चाहते। एक बात मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं, दुनिया के किसी हिस्से में विकास नहीं हुआ जहां शांति रही। जहां शांति नहीं होगी, जहां अमन चैन नहीं होगा, वहां विकास हो नहीं सकता। आप सब श्रीनगर के और कश्मीर के प्रबुद्ध लोग हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, आपका भी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वहन में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, इतिहास शायद हमें माफ नहीं करेगा। ये हम सबका संयुक्त सपना होना चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विकास की नई सुबह, समाज की नई जागृति, और उसमें हर व्यक्ति को अवसर मिले, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मैंने कहा कि इसके लिए शांति और सौहार्द बहुत आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रबुद्ध जनों के बीच हो रहे विचार मंथन, समाज के हर एक वर्ग, खासकर युवा तक पहुंचे, इसकी आवश्यकता है। समस्त बुद्धिजीवी समाज में ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। आपसे मेरा निवेदन कि जो आघात हमें पहुंचा रहे हैं, देश ने, समाज ने हमें असीम संभावनाएं दी हैं विकास की, और इसलिए इन संभावनाओं को हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सफलता का कैसे पर्याय बन सकता है, इसके लिए साझा विचार के आधार पर संकल्प लिया जा सकता है। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज त्यागी रहे हैं, तपस्वी रहे हैं। आप उनके उत्तराधिकारी, जिन्होंने भारतवर्ष की तरक्की के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी।
आज की युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर चलने के लिए स्रोत उपलब्ध हैं, आपका मार्गदर्शन भी आवश्यक है। उन्हीं में एक जीवंत और अविरल धारा का नाम डॉक्टर करण सिंह जी है, जो हमारे बीच आज मौजूद हैं। इनका जीवन राष्ट्र निर्माण के अद्वितीय कार्य इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो उस व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर करण सिंह जी सिर्फ शब्दों के शिल्पी नहीं, मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि जाने कैसे युवा अवस्था में उन्होंने अपनी जीवनी लिख डाली। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ लिखूं, एक पन्ने से ज्यादा लिख नहीं पाता। वह असीम एहसास था। मैं मानता हूं कि स्वयं की खोज थी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आज के युवा वर्ग को जम्मू कश्मीर की प्रज्ञा को जो आपने लिखा है वो पढ़ना चाहिए। वो हमारी आंतरिक संपदा है, संपत्ति है, अथाह संपदा है। और मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी विशेष करके वे लोग जो समाज सेवा, साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगे हैं, वो डॉक्टर करण सिंह जी के जीवन से, उनके शिल्प से प्रेरणा में और बिना संतुलन खोए अवरोधों पर विजय प्राप्त करके अपने सफलता की पताका फहराएं, जम्मू कश्मीर और देश की सेवा में नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। आज के अवसर पर मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने बुलाया, और क्लब के मेंबरान और पदाधिकारियों से भी 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं। अनुमति हो डॉक्टर साहब? मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं देख रहा, इसको मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरा निवेदन होगा, कृपा करके इसे पढ़िए। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही कुछ सुझाव दिए पिछले 2-3 वर्षों के, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। इतना ही कह करके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पर जरूर कुछ ऐसी कार्रवाई भी होगी कि सबको संतोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।